In terms of relationship with Russia, India, in terms of the border conflict with Russia, you have been talked about the importance of the territorial integrity and sovereignty, but you have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine, and people may think that this double standard. So what would be your position on this comment? You know, my position would be that the world is a complicated place, and there are many important principles and beliefs in the world. What happens sometimes in politics, in world politics, is countries pick one issue, one situation, one principle, and they highlight it because it suits them. But if one looks at the principle itself, I mean, we in India know better than almost any other country because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. But I do think it's an important principle, because, I would say injustice was done to us. I'm not advocating it should be done to everybody else. We have been very clear. My Prime Minister has stood next to President Putin and has said that we do not believe that this is an era of war. We are today for resolving this conflict. We want to see the end to this conflict. But we believe that every conflict finally ends in some kind of, people come to the table. That's how conflicts end. I mean, you can also decide a conflict on the battlefield, but we don't think this conflict will be decided on the battlefield. Any neighbor or anybody else, need not even be neighbor. Anybody uses terrorism कि भाई मैं terrorism के through मैं आपको negotiating table में लाऊंगा, this should never be accepted. And कभी-कभी मेरे से पूछा जाता है कि साहब अभी तो आप पॉलिटिशियन बन गए, पहले आप डिप्लोमेट थे, तो आप जानते थे पहले कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंटिन्यूटी। मैं उनको साफ-साफ जवाब देता हूँ, हाँ 50% कंटिन्यूटी, but 50% चेंज भी है, और एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय इसका अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि this minister looked at it, that minister looked at it, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद. So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. Not surprisingly, there are many questions on China, and I would just acknowledge the names of few of them who have drafted very intelligent questions about China. Rohan Bokare, Akshay Rathod, Rahul Pangirkar, Chinmay Tendulkar, Shubham Pardeshi, Akshay Manke, and many others. So, and these questions belong to India, China, Aksai Chin, and also in general BRI, and
in the eventuality of having some conflict between Taiwan and or China or disturbances in South China Sea. So they would like to know your comments about it. तो कहाँ से शुरू करें? इंडिया चाइना। देखिए, I think we should all be clear. In many ways, India and China are very unique. They are unique because एक तो हम दो ही देश हैं जिनकी आबादी जो है बिलियन लोगों से ज़्यादा है। ये भी है कि हम दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और एक समय था जहाँ we would economically dominate the world. उसके बाद वेस्टर्न पावर्स आए तो ठीक है, we went through 200 years of difficulty. But today, China and India definitely आज वो नंबर 2 इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 5वें में हैं, हम अगले 2-3 साल में तीसरे में पाएंगे। अब ये रियलिटी है, पर ये भी है कि चाइना पड़ोसी है, उनके साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ये एक किस्म से चुनौती होती है। अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे। 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये तो एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट a very long letter to पंडित नेहरू एंड उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा that I am very disturbed at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying, but अगर आप उनको माने seriously देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नियत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where for first time in history India has two front problem, this front and that other front. Now therefore we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज़्यादा ही शक कर रहे हैं, ये जो हैं they are also Asian people, और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है, उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं। फिर वो कहते हैं ये असंभव है कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें, असंभव है। ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे। पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे, उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूँ। बात उसके बाद कहाँ बढ़ी, 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चिन्ह, क्योंकि आपने अक्साई चिन्ह का जिक्र किया था, अक्साई चिन्ह के थ्रू एक रोड बना रहे हैं। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे हैं, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहा है। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहाँ जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जवाब नहीं दिया, उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी ज़मीन नहीं है, अब हमारी ज़मीन है। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो है अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई
वो भी हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा that best defense is to leave the border without development. अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़, आज बजट जो है 14,500 करोड़। आज पिछले साल, 2 साल, 3 साल में याद करिए, हर महीने कुछ नया टनल बनता है, कुछ नया रोड बनता है। टुडे कुछ ही दिन पहले वो सेला टनल बना, जहां 62 में वहीं चाइना आए थे, चाइनीज फोर्सेस आए थे, 62 में आए, बट इट रिक्वायर्ड नरेंद्र मोदी टू मेक द टनल। टुडे अभी वी हैव जस्ट टुडे नाउ नॉट टुडे recently this connection, all weather connection to Ladakh, the highest, some of the highest roads in the world today are being built in India. अगर आप रोड बिल्डिंग देखें, ब्रिजिंग देखें, टनलिंग देखें, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रहे। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं करें, हाउ कैन वी मीट द बॉर्डर चैलेंज? अब ये बॉर्डर चैलेंज हुआ, but I will take you to more serious challenge, even more serious challenge, economic challenge. अब हम सब जानते हैं, last 20-25 years हमारे मार्केट में Chinese goods are coming, चाइना माल जो आ रहा है, and our businesses are suffering and our employers, our labor is suffering. That till we start manufacturing in India. But again आप रिकॉर्ड देखिए कि एनवायरमेंट के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जा रहा था। अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जो हाँ मैं तो वो कहते हैं कि भारत जो है इट इज माने हमारे में वो क्षमता है ना कैपेबिलिटी है, माने छोड़ ही दीजिए, आप तो मैन्युफैक्चरिंग के योग्य हैं ही नहीं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? मैन्युफैक्चरिंग आधार है टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कैसे compete कर पाएंगे? तो आज हम जब बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, ये गर्व का विषय है, जरूर मैं मानता हूं। पर हमें जो है, मेरे लिए ये 5G स्टैक बनना, कोवैक्सिन बनना, चंद्रयान जाना, आज लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होना, सेला टनल बनाना, ये है भारत। दिस इज द डीप स्ट्रेंथ। तो चाइना के साथ देखिए, हमें compete करना ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती। हमें compete करना होगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। कभी कभी हमारे पड़ोस के देशों में हो सकता है कि वो कुछ ऐसे विचारधाराओं या ताकतों को वो सपोर्ट करें जो हमारे खिलाफ हो, ये भी हो सकता है। पर जब तक हमारे माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे 1950 में हुआ था, गलती कहाँ से हुई थी? गलती अगर शुरू में क्लैरिटी नहीं है तो बाकी स्टेप्स नहीं आएंगे। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो, बिना तनाव के हो। पर जो अग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए थे 93 में, 96 में, 2006 में, 2012 में, अग्रीमेंट्स ये थे कि कोई भी साइड LAC में 5,000 ट्रूप्स से ज़्यादा बिना नोटिस के ला नहीं सकता। कोई भी साइड बड़े हेवी वेपन्स जो हैं
LAC पे ला नहीं सकते। इसका उन्होंने कोविड के समय में उल्लंघन किया था और इसका जवाब तुरंत हमने दिया था। Our forces today are deployed out there and have been deployed and will be deployed. They will stay there till the border is, till it is ensured that the peace and tranquility is restored. And if there is attempt to put pressure on us, we have to stand up to that pressure. That is what we are doing today.